Okay. I see Chandrani also joining. Yeah, she has joined. So, Sangini and Chandrani, you're in the class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So today we will be doing regarding history. So the first part will be regarding the Muslim League, and with that, if time permits, then we would go to the Swadeshi movement. Okay. So here I share the first slide. Over here, yeah. So a quick revision. So we have come to know regarding the reason behind the partition of Bengal. It was divided into two parts. One is the Hindu, on basis of language, it was divided on the basis of religion, Hindu and Muslim, and also on the basis of language. Okay. So after that, we have seen that this partition of Bengal gave rise to a national movement. That is what? The Swadeshi movement. So now we have also seen the background regarding the INC, the International Congress. So today we're gonna go through the Muslim community. Okay, the formation of the All India Muslim League. All right. So this is the slide over here. Okay. So this is the first slide, partition of Bengal. With that, we have gone through the background of the partition, the reason behind the partition of Bengal. Then what was the evil thought of the Britishers, and how did our national leaders try to communicate the evil thought of the Britishers and motivated the Indians to take part in the movement and to bring independence in India from the British rule. Then we have also seen that the partition was declared on 16th October 1905, and the viceroy was Lord Curzon. With that, we have seen the two reasons of partition of Bengal. And then we have gone through this pictorial where the division is depicted, Bengal and Eastern Bengal. Then today, the foundation of All India Muslim League is our topic. Okay. So the background of this is that the Muslim people thought that they are in danger, because they thought that the INC, the Indian National Congress, basically supports the Hindus. They basically support the Hindu. So in order to protect their rights, they form this particular league. The name is All India Muslim League, that was called upon in Dhaka. Okay. So we shall go through this topic. Okay. First, okay. See, here it is given that the Muslim League was founded in 1906 to safeguard the rights of Indian Muslims. Okay. So it was basically to safeguard the right of Indian Muslim, so that Muslim they also get a power over in the rule. So the idea that we have to form Muslim League was basically of Sir Syed Ahmed Khan. Okay.
the communal idea that the Muslims are a separate nation was sown into the Indian political ethos first by Sir Syed Ahmed Khan. He was a philosopher and a Muslim reformist. Okay? ये जो सर सैयद अहमद खान थे, इन्होंने फर्स्ट ये सोच आया था इनका दिमाग में कि मुस्लिम को भी एक सेपरेट आइडेंटिटी चाहिए. So he was of the opinion that Muslim has to get education and they have to think in a scientific temper. He suggested allying with the British rather than rebel against them as most beneficial for the community. मतलब इन्होंने सोचा कि अभी मुस्लिम लोग को तो माइनॉरिटी हिसाब से देखा जाता था, तो इन लोग ने सोचा कि अभी मुस्लिम लोग के लिए एडुकेशन और मतलब आधुनिक जो बोलते हैं ना साइंटिफिक, ठीक है, मॉडर्न वे से सोचना जरूरी पड़ेगा. और ये तो ऐसे नहीं होगा ना, ये जब ब्रिटिशर्स वाज मॉडर्न ना, दे वर फॉलोइंग द वेस्टर्न कल्चर, तो ये कब होगा? जब ब्रिटिश के साथ मुस्लिम लोग हाथ मिलाएंगे. He had founded the Muhammadan Educational Conference in 1886, but this organization stayed away from politics and desisted from even discussing it as per his own code. मतलब ये देख के जो सर सैयद अहमद खान ने जो मुस्लिम के बारे में सोचा था कि मुस्लिम लोग को एजुकेशन चाहिए, मुस्लिम लोग को साइंटिफिक हिसाब से सोचना चाहिए, इसी कारण उसने एक कॉन्फ्रेंस का आयोजित किया था 1886 को. उसका नाम क्या था? मुहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस. ठीक है, इतना तक समझ में आया? यस मैम. Yes, ma'am. इसके बाद क्या हुआ, अभी हम लोग वो कॉन्फ्रेंस के बारे में जानेंगे. इस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था कि 3000 डेलीगेट्स, ओके, 3000 पीपल अटेंडेड द कॉन्फ्रेंसेस एट ढाका. ठीक है, और विद दैट ये जो कॉन्फ्रेंस का एक मुद्दा था कि हम लोग पॉलिटिक्स के ऊपर बात नहीं करेंगे. सो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड कि जब ये जो कॉन्फ्रेंस ने ये लागू किया कि हम लोग पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, तो ये वहां के दो लीडर को हजम नहीं हुआ. तो उन लोग ने बोला कि नहीं, अभी तो शेर सईद जो खान थे उनका देहांत हो गया था तब तक. तो उन लोग ने क्या किया कि अभी ये जो पॉलिटिकल इशू में हम लोग बात नहीं करेंगे जो उसने बोला था, उन दो लोग ने इसको मंजूरी नहीं दिया, मतलब उन लोग को बात करना है. तब जाके क्या हुआ था कि ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग उन लोग ने बनाया. और ये जो नाम पड़ा था ना, इसको तो कोई तो एक गठन का तो कोई तो नाम होगा. तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो नाम आया था, ये किसने दिया था? ये दिया था नवाब ख्वाजा सर सलीमुल्लाह बहादुर. इतना बड़ा नाम क्या है? नवाब ख्वाजा सर सलीमुल्लाह बहादुर और हकीम अजमल खान ने ये नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दिया था. तो इतना तक हम लोग ने क्या जाना? क्या सर सैयद अहमद खान को लगा था कि मुस्लिम कम्युनिटी को हिंदू से डर है, इसलिए मुस्लिम लोग को एडुकेशन चाहिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट से, साइंटिफिक विचार थॉट उन लोग के अंदर में लाने के लिए उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइज किया था. उसका नाम था मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, जहां पे 3000 आदमी लोग अटेंड किए थे उन कॉन्फ्रेंस में, जहां पे जाके वो लीग बना था. और वो लीग का नाम क्या पड़ा? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. ठीक है, इतना तक क्लियर हुआ? यस मैम. फॉर्मेशन कैसे हुआ? फिर अभी हम लोग चलते हैं कि ये जो AIML, इसका शॉर्ट फॉर्म है AIML, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, वाज द फर्स्ट, ये याद रखना, AIML was the first Muslim political party of India. ये सबसे पहले जो मुस्लिम लोग ने जो पॉलिटिकल पार्टी तैयार किया था, ये वो था. अभी ये जो सोच था कि क्योंकि कांग्रेस जो था, कांग्रेस पार्टी वाज ओनली कैटरिंग टू द नीड्स ऑफ द हिंदूज. जो उन लोग को लगा था कि जो INC है,
आईएनसी तो सिर्फ हिंदू के बारे में सोच रहा है, तो ये लोग का क्या होगा? पर आईएनसी क्या ऐसा था कि आईएनसी नहीं, आईएनसी दोनों कम्युनिटी के बारे में सोच रहे थे। तो तब जाके ये जो मुस्लिम लीग के जो फेमस लीडर थे, वहां पे जो फेमस थे उन लोग का नाम था ख्वाजा सलीमुल्लाह, विकारुल मुल्क, शायद अमीर अली, सियाद नबीउल्लाह, खान बहादुर गुलाम और मुस्तफा चौधरी, ये सब वहां तब के लीग के फेमस लीडर थे। और उसी दौरान ये जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बना था उस लीग का, बने थे सर सुल्तान मोहम्मद शाह, जिनको आगा खान 3 करके भी फेमस थे। ठीक है, और ये जो AIML है, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, दिस पर्टिकुलर लीग कॉम्प्राइज्ड ऑफ द एलिट मुस्लिम, मतलब जो एडुकेटेड थे, जो एलाइट थे, ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग उन लोग से फॉर्म हुआ था। अभी हम लोग ये इसका लीग का क्या मोशन था, सेकंड में लिखा है, द लीग वांटेड अ सेपरेट नेशन फॉर इंडियाज मुस्लिम बिकॉज इट फियर्ड दैट एन इंडिपेंडेंट इंडिया वुड बी डोमिनेटेड बाय हिंदूज। क्योंकि उन लोग को लगा था कि जैसे मुस्लिम एक माइनॉरिटी कास्ट है, तो उन लोग को लगा था कि हिंदू तो मुस्लिम के ऊपर डोमिनेट करेंगे, तो इसलिए उन लोग को एक सेपरेट आइडेंटिटी चाहिए था। फिर ये फाउंडर लोग के नाम, ख्वाजा सलीमुल्लाह, विकारुल मुल्क, शैद अमीर अली, शायद नबीउल्लाह, खान बहादुर गुलाम एंड मुस्तफा चौधरी। फिर हम लोग जो द मेन ऑब्जेक्टिव है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तो बन गया, पर इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट, द फीलिंग ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब मुस्लिम भी एक जो कम्युनिटी है, मुस्लिम को एक आइडेंटिटी जो मिले, गवर्नमेंट से जो आइडेंटिटी मिले, इसके लिए मुस्लिम लोग चाहते थे कि हम लोग को भी एक आइडेंटिटी मिले, हम लोग को भी एक लॉयल्टी मिले, हम लोग भी दिखाए जो हम लोग भी लॉयल है। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन लोग को बोल रहे थे कि अगर तुम लोग ने हम लोग को सपोर्ट किया, तो इस बदले में तुम लोग का कम्युनिटी के लिए हम लोग हेल्प करेंगे। तो वो सोच के ही मुस्लिम ने सोचा कि अरे ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हम लोग के फॉर्म में सोच रहे हैं, तो इसी कारण मुस्लिम लोग ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर लॉयल्टी दिखाने का प्रयास किया। फिर जाके सेकंड ऑब्जेक्टिव ये था कि टू सेफगार्ड द पॉलिटिकल राइट ऑफ द मुस्लिम एंड टू कन्वे द सेम टू द गवर्नमेंट। मतलब अभी उन लोग का मानना था, मुस्लिम लोग का मानना था कि अगर पहले सोचता कि पार्टीशन नहीं होना चाहिए, पर फिर वो लोग मुस्लिम लोग सोचने लगे कि अरे अभी तो हिंदू लोग, अगर हम लोग का ऐसा नहीं होता है तो हिंदू लोग हम लोग को डोमिनेट करेंगे, मतलब आफ्टर ब्रिटिश हिंदू पीपल हु डोमिनेट अस, तो हम लोग को भी तो अपना पॉलिटिकल राइट चाहिए ना, हम लोग क्यों किसी के दबाव में रहे। सो फॉर दैट टू सेफगार्ड द पॉलिटिकल राइट, उन लोग ने भी ये मुस्लिम लीग का बनने के लिए ये उन लोग ने रजामंदी दी थी। फिर टू प्रिवेंट द राइज ऑफ प्रेजुडिस अगेंस्ट अदर कम्युनिटीज ऑफ इंडिया अमंग द मुस्लिम। अभी मुस्लिम के अंदर में ये जो कॉन्फ्लिक्ट कभी कभी हो रहे थे, क्योंकि मुस्लिम के अंदर में भी कोई आदमी थे जो पार्टीशन नहीं हो ये चाहते थे। तो ये जो प्रेजुडिसेस और ये मुस्लिम का मानना था कि ये जो हिंदू हम लोग को मतलब ऊपर आने नहीं देंगे, तो इसे भी रोकना चाहते थे मुस्लिम। पर फायदा तो था ना उन लोग का कम्युनिटी को, क्योंकि सब हर कोई चाहता था कि अपना कम्युनिटी के आदमी लोग मतलब बढ़े। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बाद में देखेंगे जो तिलक ने मुंबई में कैसे गणपति विसर्जन और शिवाजी ये जो फेस्टिवल मना के कैसे लोग को आगाह किया कि पार्टीशन नहीं होने दे। वैसे ही कि मुस्लिम लोगों ने भी ये सोचा कि सिर्फ हिंदू का ही तो सपोर्ट हो रहा है आईएनसी में, तो हम लोग को भी तो कोई लॉयल्टी चाहिए, हम लोग को भी तो आइडेंटिटी चाहिए। तो ये था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लीग। तो हम लोग ने क्या करा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लीग, कि हम लोग लॉयल है ब्रिटिश गवर्नमेंट के टुवर्ड्स, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट समझ में आए, देन हम लोग का पॉलिटिकल राइट्स प्रोटेक्ट हो
और दूसरा कि जो प्रिजुडाइज है ये मुस्लिम और हिंदू के बीच वो खत्म होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हुआ? हाँ, Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. संगिनी, चंद्रानी, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हुआ? Yes, ma'am. अच्छा, फिर ये क्या हुआ, ये जो लीग है ये बहुत बड़ा मतलब एक स्टोरी जैसा है। फिर जाके क्या हुआ कि जो जिन्ना थे उन्होंने ये लीग ज्वाइन किया था 1913 को, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना ये लीग को ज्वाइन किए थे 1913 को, पर जब जिन्ना ने ज्वाइन किया और एक सेपरेट, क्योंकि तब तक इंडिया पाकिस्तान ऐसे डिवाइड हो गए थे, तो जब जिन्ना ने इस पार्टी पे उन्होंने जब प्रवेश किया तो they were successful in its mission of dividing the country। तो इंडिया पाकिस्तान अलग से बंटवारा हो गया था। इसके बाद ये बंटवारा होने के बाद the country was partitioned along communal lines among with independence in 1947। तो ये जो इंडिया पाकिस्तान जब बंटवारा हो गया था ये लीग को डिसॉल्व किया गया था। कब? 14 अगस्त 1947। तो 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान के लिए उनके लिए इंडिपेंडेंस डे था। हम लोग का 15 अगस्त और उन लोग का 14 अगस्त को उन लोग के लिए इंडिपेंडेंस था। तो ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, पहले तो जो खान थे, सर सैयद अहमद खान थे, उन्होंने वो फॉर्म में थे कि हिंदू मुस्लिम एक होना ही बेटर है, पर फिर सोचा कि नहीं, मुस्लिम लोग को राइट नहीं मिल रहा है, उन लोग को तो दबाया जाएगा हिंदू के आफ्टर ब्रिटिश। तो उन लोग ने सोचा कि क्यों ना ब्रिटिश के साथ हाथ मिलाया जाए ताकि हम लोग का कम्युनिटी को भी फायदा हो। इसी कारण ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था और वहाँ का जो लीडर्स थे, मेन लीडर्स थे, ये ख्वाजा सामिलुल्लाह, मुल्क, बहादुर गुलाम, ये लोग थे। फिर जाके सलीमुल्लाह और हाकिम खान ने मिलके ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का नाम दिया था, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि द फीलिंग ऑफ लॉयल्टी दिखाना ब्रिटिश गवर्नमेंट के टूवर्ड्स, फिर उन लोग का जो पॉलिटिकल राइट है वो प्रोटेक्ट करना, उसको बचाना, और द राइज ऑफ प्रिजुडाइज को बढ़ते हुए उसको रोकना। जिन्ना ने फिर ये पार्टी कब ज्वाइन किया था? 1913 को। और जब पाकिस्तान का और इंडिया का बंटवारा हो गया था तो ये धीरे धीरे ये लीग भी डिसॉल्व हो गया था। कब? 14 अगस्त 1947 को। मुस्लिम लीग क्लियर हुआ है? Yes, ma'am. ओके। फिर ये देखो, ये इंडिया, ये जो ब्रिटिश के साथ मुस्लिम लोग भी है, ये एक पिक्चर है 1906 का, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ये जो प्रेसिडेंट थे मुस्लिम लीग के वो लोग भी थे और ब्रिटिश लोग भी थे। फिर हम लोग अभी स्वदेशी मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये स्लाइड पिछला वो जो क्लास किए थे वहां पे भी मैंने दिखाया था कि क्या क्या हुआ था। पहले हम लोग बैकग्राउंड समझ जाते हैं, फिर हम लोग स्टोरी में जाएंगे। बैकग्राउंड में ये हुआ था कि जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ, बंटवारा हो गया, हिंदू एक तरफ, मुस्लिम एक तरफ, बंटवारा हो गया। हिंदू मुस्लिम बंटवारा चाहते थे, डिवाइड एंड रूल ब्रिटिश चाहते थे, बंटवारा हो गया उन लोग का। अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो स्वदेशी मूवमेंट आया था, ठीक है, यहाँ से जो सब कुछ स्टार्ट हुआ था ना, सब नेशनल मूवमेंट, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस लाया था, मतलब क्या क्या हुआ था उस समय। उस समय क्या हुआ था? फॉरेन गुड को बॉयकॉट किया गया था। मतलब जो भी प्रोडक्ट कहाँ से आते थे, जो प्रोडक्ट विदेश से आते थे, ब्रिटेन से आते थे, जैसे कि नमक, फिर वहां का क्लोथ, मैनचेस्टर क्लोथ, फिर लिवरपूल से जो सॉल्ट आते थे, उसमें रोक लगा। I can't hear your voice. You can't hear me? Yes, ma'am. Can you hear me now? Yes. Okay. So where I was in there were okay. तो ब्रिटेन से जो कपड़े आते थे उसमें रोक लगाना कि हम लोग ये ब्रिटिश प्रोडक्ट को बॉयकॉट करते हैं, हम लोग नहीं खरीदेंगे। तो उन लोग ने बॉयकॉट किया, उन लोग ने पिकेटिंग स्टार्ट किया। मतलब पिकेटिंग मतलब ना
किसी को खरीदने के लिए वो दुकान में जाने देंगे ना, जो बेच रहा था उसको बाहर आने देंगे, मतलब दुकान के सामने धरने पे बैठना। सो दे ऑल्सो स्टार्टेड पिकेटिंग। फिर एम्फेसाइज ऑन इंडिजिनियस एंटरप्राइजेस, मतलब हम लोग ने तो बॉयकॉट कर दिया फॉरेन गुड्स का, भी कुछ तो करना पड़ेगा, क्या करेंगे हम लोग? तो दे स्टार्टेड मेकिंग देयर ओन गुड्स, मतलब सब कुछ मेड इन इंडिया होगा। फिर 16 अक्टूबर 1905 को डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग क्या था, इसी दिन पार्टीशन डिक्लेयर हुआ था, और ये इसके लिए ये वाला दिन को डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग हिसाब से डिक्लेयर किया गया था। और इसी दिन क्या हुआ था कि हिंदू मुस्लिम ने कि ये एक दूसरे को राखी बांधी थी, फिर गंगा रिवर में जाके नंगे पैर उन लोग ने वहां पे जाके स्नान किया, फिर फास्ट किया, क्योंकि इस दिन दे ऑब्जर्व दिस डे एज अ मॉर्निंग। बहुत ही गंभीर, बहुत ही सैड डे था उन लोग के लिए। फिर जो स्वदेशी मूवमेंट, उसको जो वो मोटिवेट करने के लिए सब कोई वंदे मातरम गा रहे थे। फिर तब जाके जो कल्चरल साइड में अमर सोनार बांग्ला, जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कंपोज किए गए थे, वो नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश हिसाब से डिक्लेयर किया गया था। फिर हम लोग सेकेंड स्लाइड में, ये देखो क्या क्या हुआ था। बॉयकॉट जो उन लोग ने किया था, पब्लिक बर्निंग हुआ था कि कपड़ों को, फॉरेन कपड़ों को, जैसे मैनचेस्टर से आते थे कपड़ा, फिर जो ये जो दुकान के सामने धरना देना, ये सब स्टार्ट हो गया था। और बंगाल को ही क्यों टारगेट किया था? क्योंकि बंगाल वाज अ हब ऑफ एवरीथिंग, मतलब वहां का जो मिडिल क्लास पीपल थे, बंगाल वाज द हब, मतलब वहां में क्लोथ्स का आदान प्रदान, बिक्री, ये सब करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये बंगाल एक हब बन गया था। पर वहां के लोग ने इसे बंद करने के लिए उसको, वो जो कपड़े, फॉरेन कपड़े को जला दिया था। इट वाज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश गुड्स। फिर जाके बहुत कोई क्लब बना गया था, समिति बना गया था कि वॉलेंटरी आदमी लोग वहां पे वो लोग वॉलेंटरी पार्टिसिपेट कर रहे थे। और तब जाके अश्विनी कुमार दत्त, जो एक स्कूल टीचर थे, उन्होंने एक समिति बनाई, स्वदेश बंधव समिति बनाया था, कि क्योंकि पीपल को तो अभी जो आदमी लोग, तो उन लोग को तो जागरूक करना पड़ेगा, तो और वॉलेंटरीली पीपल को आना पड़ेगा इस मूवमेंट में शामिल होने के लिए। तो उन्होंने एक वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम था स्वदेश बांधव समिति। फिर उसी दौरान, अभी बाद में हम लोग देखेंगे कि आईएनसी का 2 भाग हो गया था, एक एक्सट्रीमिस्ट और एक मॉडरेट हो गया था। तो ये जो शिवाजी और गणपति फेस्टिवल का जो आयोजित किया गया था, ये बाल गंगाधर तिलक ने किया था, और वो थे एक एक्सट्रीमिस्ट। तो उसी दौरान वो चाहते थे कि ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो चल रहा था बंगाल में, ये बाहर में भी प्रचार हो, ये बाहर में, क्यों बंगाल तो सफर कर रहे, तो ये चाहते थे कि ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये जो स्वदेशी मूवमेंट है, ये मतलब नेशनल मूवमेंट हो जाए, नॉट ओनली फॉर बंगाल, इट गोज टू द नेशनल लेवल। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट का एक आइडिया मिल चुका है क्या? एक इंडियन नेशनलिज्म का डेवलप होना, रिमूव दिस वर्ड, ओके, एक इंडियन नेशनलिज्म का डेवलप होना, फिर क्या होना, ब्रिटिश गुड का बॉयकॉट होना, यूज ऑफ, कि हम लोग खुद का सामान बनाएंगे, यूज ऑफ इंडिजिनियस गुड्स। तो ये था स्वदेशी मूवमेंट का मेन एम्फेसाइज, और यही स्वदेशी मूवमेंट को लेके ही आगे चल के नेशनल जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सब का जो जड़ है वही है स्वदेशी मूवमेंट। इट इज द precursor of the other movements. Swadeshi movement was the precursor of the other movements. ठीक है, एक बैकग्राउंड मिला, मतलब क्या हो रहा था एक्चुअली, उसका वो कंसेप्ट क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ये देखो यहाँ पे ये जो कपड़ा है, ये जो मैनचेस्टर से आता था,
ये फुटबॉल का एक टीम है ना, मैनचेस्टर लिवरपूल, ये तब का समय में मैनचेस्टर एक मतलब एक कंपनी होता था, कपड़ा बनाता था, ये सब जला दिया जाता था। फिर यहाँ के नेता लोग वो जो वहाँ के पीपल थे, जो वहाँ के आदमी लोग थे, उन लोग को जागरूक कर रहे थे कि नहीं, पार्टीशन नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग कांग्रेस का पोजीशन देखते हैं। तो अभी क्या हुआ था कि अभी तो मेन मुद्दा ये था कि पार्टीशन नहीं होना चाहिए इंडियन पीपल के लिए, और ब्रिटिश चाहते थे कि पार्टीशन हो, क्योंकि उन लोग चाहते थे कि हम लोग इंडिया के ऊपर राज करें, राइट। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, एक रोल है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उन्होंने क्या किया था कि बनारस में एक मीटिंग आयोजित किया गया था, जहां पे उन लोग ने बोला था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के ऊपर रोक लगाओ, और हम लोग कर्जन का जो पॉलिसी है वो नहीं मानेंगे, क्योंकि कर्जन ही वो आदमी है जिसने डिवाइड एंड रूल का वो कार्ड प्ले किया, जिसने जो चाहते थे कि इंडिया का बंटवारा हो, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड रिलीजन। और गोखले चाहते थे कि और ज्यादा आदमी ये स्वदेशी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करे। तो फिर जाके आईएनसी में क्या हुआ, आईएनसी में भी बंटवारा होने लगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डिवाइडेड इनटू एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। एक्सट्रीमिस्ट मतलब जो चाहते थे कि ये जो बंगाल जो स्वदेशी मूवमेंट में जो क्या बोलते हैं, द बंगाल हु वाज सफरिंग फ्रॉम स्वदेशी मूवमेंट, extremists wanted to make this movement to the national level, पर मॉडरेट चाहते थे नहीं, ये बाहर तक ना जाए, बंगाल में ही गवर्नमेंट के साथ सेटल हो जाए। मॉडरेट चाहते थे कि ठीक है, इंडिया आपको चाहिए, इंडिया आप रूल करेंगे, ठीक है आप करो, पर ऐसा करो कि जैसे कि यूके में होता है, जैसे कि यूके में क्या होता है, मोनार्क भी रहते हैं, राजा रानी भी रहते हैं, और पार्लियामेंट भी रहते हैं। तो मॉडरेट चाहते थे कि ठीक है, आप लोग भी रहे, हम लोग भी रहे, हम लोग को भी फायदा हो, हम लोग को भी एजुकेशन मिले, हम लोग का भी खर्चा पानी सब चले, और आप लोग भी रहे। पर एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि नहीं, इंडिया हमारा है, हम लोग ही यहाँ पे रहेंगे, एंड दे वांटेड टोटल इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। दोनों अभी स्वदेशी और सॉरी नॉट स्वदेशी, एक्सट्रीमिस्ट और जो मॉडरेट का जो सोच था, उसका जो डिफरेंसेस था वो समझ में आया? हाँ, मॉडरेट क्या चाहते थे और एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे, क्लियर हुआ ना? यस मैम। ओके, तो अभी फिर जाके क्या हुआ था, ये देखो, जब ये एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट का बंटवारा हो गया एनसी में, तब जाके 1907 में एक सूरत में जाके उसका स्प्लिट हो गया था, सूरत स्प्लिट करके उसे डिक्लेयर किया गया था। तो अभी हम लोग एक्सट्रीमिस्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं। एक्सट्रीमिस्ट वो लोग थे जो चाहते थे कि ये जो मूवमेंट हो रहा है वो बाहर में भी प्रचार हो, जैसे कि पुणे में हो, बॉम्बे में हो, पंजाब में हो, दिल्ली में हो, मद्रास में हो। तो वहां के रीजन में कौन कौन वो प्रचार किए थे, पुणे और बॉम्बे में किए थे तिलक जी, पंजाब में किए थे अजीत सिंह और लाला लाजपत राय, दिल्ली में किए थे शेख हैदर रजा, और मद्रास में किए थे चिदम्बरम पिल्लाई। इन लोग ने बाहर में, बंगाल के बाहर जाके प्रचार किया था कि बंगाल पार्टीशन हो रहा है, इसे रोकिए, ये ब्रिटिश रोक का चाल है, इनको हम लोग को सपोर्ट कीजिए, हम लोग लीडर्स को सपोर्ट कीजिए, ताकि ये पार्टीशन हम लोग नहीं होने दे। फिर मॉडरेट जो चाहते, मॉडरेट ये चाहते थे कि हम लोग भी रूल करें और मोनार्क भी रह जाए, आप लोग को भी थोड़ा सा रूल करने को मिल जाए, और हमें भी अपना जो इकोनॉमी है, हम लोग जो सेल्फ रूल है हम लोग का, इंडिया लोग का, वो भी रहे। तो ये जो चीज हो रहा है, इसका तो सेटलमेंट होना चाहिए ना। तो तब 1906 में, डेट देखो, 1906 में फिर से एक कलकत्ता शासन हुआ था। वहां पे दादा भाई नेहरू जी को एज अ प्रेसिडेंट उस मीटिंग का लिया गया था, क्योंकि जो दादा भाई नेहरू जी थे वही एक जन थे जिनको
मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों ही सपोर्ट करते थे, दोनों ही उनका विचार को रेस्पेक्ट करते थे। और इसी दौरान जाके ये जो दादा भाई नेहरू तो 1906 में इनका ये प्रेसिडेंट, ये इसने प्रेसिडेंट किया था। पर क्या हुआ था, ये जो स्प्लिट हुआ था, क्यों स्प्लिट हुआ था? क्योंकि तिलक जी को एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि प्रेसिडेंट हो, और रश बिहारी घोष को प्रेसिडेंट चाहते थे कौन? मॉडरेट। तो ये जो दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस आया कि राजपथ और तिलक और राजपथ जी को सपोर्ट करते थे एक्सट्रीमिस्ट, और रश बिहारी घोष को सपोर्ट करते थे मॉडरेट, और इन दोनों के बीच इसके लिए क्लैश हुआ था, जिसके लिए आईएनसी का स्प्लिट हो गया था। और वो जो स्प्लिट हुआ था सूरत स्प्लिट नाम से उसे वो फेमस हुआ था। तो हम लोग का आईएनसी का 3 इम्पोर्टेंट सेशन हुआ था। कब कब? एक बनारस में 1905 में, एक कलकत्ता में 1906 में, और फाइनली इन सूरत इन 1907। ठीक है, हम लोग अभी तो सिर्फ 1 मिनट ऐसे रह गया है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कंट्रीब्यूशन क्या हुआ। इस स्वदेशी मूवमेंट जो हुआ था, एक टाइम में ये 1911 में जाके ये स्वदेशी मूवमेंट खत्म हो गया था, पर इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस या कंट्रीब्यूशन जो हुआ, उस क्या हुआ था, क्या पॉजिटिव ये जो कंट्रीब्यूशन हुआ था ये स्वदेशी मूवमेंट के लिए क्या हुआ था, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये जो हिस्ट्री का चैप्टर है, इतना तक जो मैंने पढ़ाया, ये क्लियर हुआ है? यस मैम। Yes, ma'am. पूरा हुआ ना? कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। ओके, ठीक है। तो फिर तो कल हम लोग कल तो वेडनेसडे, कल तो क्लास 9 का है, ठीक है। परसों हम लोग मेघालय बोर्ड से करेंगे, ठीक है। तो बाय सैटरडे आई गोना फिनिश दिस लेसन, दिस पर्टिकुलर लेसन, ओके। सो यस मिस। ओके, अच्छा, ये जो संगिनी और चंद्रानी, ये तो सेबा बोर्ड का है, तो इसका शॉर्ट आंसर तुम लोग को पता है क्या हुआ है? शॉर्ट आंसर नो मैम। दिया गया है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टाइप। मैम क्या बोला आपने? मैंने जो यू दिस द चैप wait the chapter, not the chapter, the page number 19, there are some exercises, okay? So all those exercises, did you have complete all those? यस मैम। ओके, तो ये जो जितना तक पढ़ा है उसका एक रिवीजन करके रखना, और जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ के एक एमसीक्यू का हम लोग एक क्लास करेंगे, ठीक है? ओके मैम। ओके, सो आई एंड द क्लास फॉर टुडे ओवर हियर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। ऑलराइट, टेक केयर, बाय।